Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Munchi from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter Control and Coordination. It is chapter number 2nd, 10th Standard Biology, and in this chapter today my topic to discuss is nervous system in animals. Animals में highly developed nervous system पाया जाता है, जिसके बदौलत से वो अपने आप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो उनके वातावरण में हो रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना एनिमल्स इस बदौलत से अपने आप को सर्वाइवल कर पाता है। इसके लिए एक सिस्टम डेवलप उन्होंने किया है, that is the nervous system. Nervous system is very efficient and highly developed in the class mammalia, as including human beings. They have highly developed brain. Brain is the central part of a nervous system. With the help we can think, we can thought, we can learn, we have intelligence, we have memory, we can do many activities with the help of the brain. We can have a reasoning, solving. We can have capability to do so many things with the help of the brain. तो नर्वस सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जिसके बदौलत से बहुत सारे एनिमल्स, चाहे टिश्यू ग्रेड के ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने आप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। पहले अगर हम देखेंगे इन द invertebrates, they have simply the network of nervous system and simply modified, and they perform the job in their surrounding. They control and coordinate themselves with that help, with that network of the system. But if we go to the vertebrates, where including higher grade of organism, multicellular, उनमें highly developed nervous system होता है। नर्वस सिस्टम जो अगर हम बात कर लेंगे, नर्वस सिस्टम इसके बदौलत से ही बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आई टॉक अबाउट द एनिमल्स हियर, वह अपने आप को कंट्रोल भी कराते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। किस चीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बहुत सारे जो उनके लाइफ एक्टिविटीज है, जो लाइफ एक्टिविटी उनको मदद करते फॉर द सर्वाइवल इन देयर सराउंडिंग्स। उसमें सर्वाइवल करने के लिए दे परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. सम एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड एंड सम एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म. दोनों चीज है. तो ये एक्टिविटीज हम तब कंट्रोल और कोऑर्डिनेट में ला सकते जब एक ऑर्गेनिज्म में अच्छा खासा नर्वस सिस्टम हो. आपको पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इट इज मेड ऑफ innumerable cells that are the neuron cells, neurocells. But we can say that neuron cell is a structural and functional unit of nervous system. Nervous system can be categorized into, first, that one is the central nervous system. If we talk about the animals, central nervous सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CNS. सेकंड इज द, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको आएगा इसमें ब्रेन, which is in the cranium part of our body. Then is the spinal cord,
both spinal cord and brain is the part of central nervous system, and this part is very important in animals as major work is controlled and coordinated with the help of the central nervous system. Various activities are processing by the brain, and many autonomous activities are also as well controlled by the spinal cord itself, as we talk about the reflex actions. Then is the second peripheral peripheral nervous peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे क्रेनियल नर्व्स, ये वॉलेंट्री एक्शंस को मेंटेन करते हैं। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। इन क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में 3 तरह के न्यूरॉन सेल्स नर्व होते हैं। एक हो गया सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटर नर्व, तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व इज अ कंपोजिशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व। तो ये आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल के क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व कहलाते हैं। यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं मसल्स, ग्लैंड्स, या also peripheral nervous system controls involuntary actions as well. We can call them as, इन्हीं में से वो निकल के autonomous nervous system, autonomous nervous system। तो इसमें nervous system can be categorized into 3. The third one is the autonomous nervous system. Autonomous nervous system means ANS, that it is made of two system of nerves: sympathetic nervous system, second one is parasympathetic nervous system। Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, their work is opposite. If one do the job and another stops the job. If sympathetic nervous system perform the job, it operates the job, and parasympathetic nervous system is against it, that it stops that job, that activity. Both collectively is known as autonomous nervous system, and various involuntary actions are controlled। जो ये ज्यादातर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स, उनके वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर will, they can be controlled by the autonomous nervous system। The involuntary actions are performed by the internal organs, visceral organs जो होते हैं, वो इन्हीं से कंट्रोल होते हैं। उनकी एक्टिविटी जो भी, अगर हम बात कर लेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे जो सिक्रीशन निकलते हैं, हाँ, स्टिमुलेंट हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, और वो टारगेट ऑर्गन पे
कंट्रोल करता है, उनको काम कराते हैं। तो स्टिमुलेंट हार्मोन जो है वो टारगेट ऑर्गन पे, टारगेट टिश्यू पे काम कराता है, वहाँ से सिक्रीशन निकलता है। एंड इन अगेंस्ट इनहिबिटरी हार्मोन उसी सेम टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू पे उस काम को, उस सिक्रीशन का अब रोक दे देता है और काम स्टॉप कर देता है। तो वो ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो इटसेल्फ अंडर द कंट्रोल है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो हम कहेंगे जो एनिमल्स है इनको अपने आप को स्टैटिक स्टेट में, या हम कहेंगे स्टेडी स्टेट में मेंटेन करना है अपने वातावरण में। आपको पता कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं वातावरण में, कुछ चेंजेस फेवरेबल होते हैं, कुछ चेंजेस अनफेवरेबल होते हैं। तो इसको, इस एनिमल को, इस ऑर्गेनिज्म को दोनों सूरतों में अपने आप को स्टेडी स्टैटिक स्टेट मेंटेन करनी है। वो विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, उस टर्म को हम कहते हैं हेमियोस्टेसिस। वो विद द हेल्प ऑफ द nervous system we can maintain the homeostasis, that means steady static state in the surrounding. With the help of the nervous system there is the homeostasis to maintain the steady, meaning uniform steady state, steady static state to maintain steady, एक जैसा यूनिफॉर्म स्टैटिक स्टेट ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स इन द सराउंडिंग्स, चाहे उस सराउंडिंग में इसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिले या फेवरेबल कंडीशंस मिले, दोनों सूरतों में इसको बचना है, अपने आप को स्टैटिक मेंटेन रखना है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेमियोस्टेसिस, टू मेंटेन द स्टेडी static state, that is only because of the possibility with the help of nervous system and also the chemical system, that is endocrine system. So I hope you understand about nervous system in animals, how animals themselves control and coordinate in their surrounding because of the nervous system. So nervous system can be categorized into the three. One is the central nervous system जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन जो है ये हमारा क्रैनियम, बॉडी के क्रैनियम पार्ट में प्लेस होता है, पोजिशन, एंड स्पाइनल कॉर्ड passes through the trunk of our body, both known as central nervous system, CNS. Then second is peripheral nervous system जिसमें बहुत सारे जो ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं, क्रेनियल नर्व निकलते हैं, सर्विकल नर्व निकलते हैं, लंबर नर्व निकलते हैं, एब्डोमिनल नर्व्स निकलते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। तो ये बहुत सारे वॉलेंट्री एक्शंस मेंटेन करते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारे टिश्यू मसल्स को कंट्रोल में करते हैं। तो थर्ड वन इज द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हम विच इज फाउंड इनसाइड आवर बॉडी, उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, उनको वो कैसे कंट्रोल होते हैं, वो कैसे काम परफॉर्म करता है और वो कैसे खुद अपने काम को रोकते हैं, हम उसको, उस चीज़ को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। वो हो गया बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस, ऑटो मीन सेल्फ, नर्वस ऑटोनॉमस, सेल्फ नर्वस सिस्टम, सेल्फ कंट्रोल जिनका हो,
it is comprised of two nervous system itself, that is the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. जो हार्ट बीटिंग होती है, या हम कहेंगे हार्ट इंटरनल ऑर्गन है जिसमें रिदमिक वाइब्रेशन होती है, तो that is also itself the control of sympathetic and parasympathetic nervous system. बहुत सारे जो endocrine glands है, they also secrete their hormones under the same autonomous nervous system. I hope you understand about the nervous system जो है in animals, how it can be comprised of three parts. तो इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे structure and function of the nerve cell, neuron cell, and then later on the इसमें जो important question है human brain, external morphology and internal structure of human brain. तो ये उस फिर हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. थैंक यू वेरी मच.